الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قربانی کا بیان. قربانی یہ ایک مالی عبادت ہے جو غنی پر واجب ہے. خاص جانور کو خاص دن میں اللہ کے لیے ثواب کی نیت سے ذبح کرنا قربانی ہے. مسلمان مقیم مالک نصاب آزاد پر واجب ہے. قربانی کس پر واجب ہے؟ مسئلہ: جس طرح قربانی مرد پر واجب ہے اسی طرح عورت پر بھی واجب ہے. مسافر پر قربانی واجب نہیں، لیکن اگر نفل کے طور پر کرے تو کر سکتا ہے، ثواب پائے گا. مالی کے نصاب ہونے سے مراد اتنا مال ہونا ہے جتنا مال ہونے سے صدقہ فطر واجب ہوتا، یعنی حاجت اصلیہ کے علاوہ 200 درہم یعنی 52.5 تولہ چاندی یا 20 دینار یعنی 7.5 تولہ سونا کا مالک ہو. مسئلہ: جو شخص 200 درہم یا 20 دینار کا مالک ہو یا حاجت کے سوا کسی ایسی چیز کا مالک ہو جس کی قیمت 200 درہم ہو تو وہ غنی ہے، اس پر قربانی واجب ہے. قربانی کا وقت 10ویں ذی الحج کی صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی 3 دن اور 2 راتیں، لیکن 10ویں سب میں افضل ہے، پھر 11ویں، پھر 12ویں. شہر میں قربانی کی جائے تو شرط یہ ہے کہ نماز عید کے بعد ہو، اور دیہات میں چونکہ نماز عید نہیں اس لیے صبح صادق سے ہو سکتی ہے. قربانی کے وقت میں قربانی ہی کرنا لازم ہے. اتنی قیمت یا اتنی قیمت کا جانور صدقہ کرنے سے واجب ادا نہ ہوگا. قربانی کے دن گزر جانے کے بعد قربانی فوت ہو گئی، اب نہیں ہو سکتی. لہذا اگر کوئی جانور قربانی کے لیے خرید رکھا ہے تو اس کو صدقہ کر دیں، ورنہ ایک بکری کی قیمت صدقہ کر دیں. جب قربانی کی شرطیں پائی جائیں جن کا اوپر بیان ہوا تو ایک بکری یا بھیڑ کا ذبح کرنا یا اونٹ گائے بھینس کا 7واں حصہ واجب ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ اگر کسی شریک کا حصہ 7ویں سے کم ہے تو کسی کی قربانی صحیح نہ ہوگی. 7 سے کم شریک ہوں اور حصے بھی کم و بیش ہوں، لیکن کسی کا حصہ 7ویں سے کم نہ ہو تو جائز ہے. قربانی کے سب شریکوں کی نیت تقرب یعنی ثواب پانا ہونا چاہیے، خالی گوشت حاصل کرنا نہ ہو. لہذا عقیقہ کرنے والا شریک ہو سکتا ہے کہ عقیقہ بھی تقرب کی ایک صورت ہے. اب سنیے قربانی کا طریقہ. قربانی کے جانور کو ذبح سے پہلے چارہ پانی دے دیں، پہلے سے چھری تیز کر لیں، لیکن جانور کے سامنے نہیں. جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹائیں کہ قبلہ کی طرف اس کا منہ ہو، اور ذبح کرنے والا اپنا داہنا پاؤں یعنی سیدھا پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھری سے ذبح کر دیں، اور ذبح سے پہلے یہ دعا پڑھے: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر. دعا ختم کرتے ہی چھری چلا دے. قربانی اپنی طرف سے ہو تو ذبح کے بعد یہ پڑھے: اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام وحبیبک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ذبح میں
चारों रगें कटे, चारों रगें कटे, या कम से कम 3 उससे ज्यादा ना काटें कि छुरी मोहरा तक पहुंच जाए। ये बेवजह की तकलीफ है। ठंडा होने पर पांव काटें, खाल उतारें। अगर दूसरे की तरफ से ज़बह किया है, अपनी तरफ से है, तो मिन्नी कह के जो है इस दुआ को पढ़े, मिन्नी कमा तकब्बलता, अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्नी कमा तकब्बलता मिन खलीलिका इब्राहीम अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं ना। अपनी तरफ से है तो मिन्नी की जगह अपनी तरफ से तो मिन्नी पढ़े, अगर दूसरे की तरफ से हो तो मिन्नी की जगह मिन फुला कहे, मिन फुला यानी जिसका नाम है उसका नाम है, मिन फुला कहे यानी उसका नाम ले। और अगर मुश्तरक जानवर हो, यानी कई लोग मिलकर कुर्बानी किए हों, जैसे गाय, ऊंट, भैंस, तो फुला की जगह सब शरीकों के नाम ले ले। अगर दूसरे से ज़बह कराए तो बेहतर है कि खुद भी हाजिर रहें, खुद भी वहां हाजिर रहें। गोश्त और खाल का क्या हुक्म है सुनिए। अगर जानवर मुश्तरक है तो गोश्त तोलकर तकसीम किया जाए, नाप कर तकसीम किया जाए। अटकल से, अंदाजे से ना बांटें कि अगर किसी को ज्यादा पहुंच गया तो दूसरे के माफ करने से भी जायज ना होगा कि हक के शरह है। फिर अपने हिस्से के 3 हिस्से करें। आपको जितना गोश्त मिला आपके हिस्से का, उसके 3 हिस्से करके एक हिस्सा फकीरों को दे दें और एक हिस्सा दोस्तों और अजीजों को यानी रिश्तेदारों को दे दें और एक हिस्सा अपने घर वालों के लिए रखें। खुद भी खाएं, बाल बच्चों को भी खिलाएं। अगर घर वाले ज्यादा हो तो कुल यानी पूरा का पूरा जो है अपने घर के सर्फ में ला सकता है और कुल सदका भी कर सकता है। कुल मतलब लोग ज्यादा है घर में तो पूरा गोश्त अपने लिए भी रख सकता है अपने हिस्से का, और पूरा चाहे तो सदका भी कर दे सकता है। अगरचे एक हिस्सा अपने लिए बेहतर है। अगर मैयत की तरफ से हो यानी किसी मुर्दे की तरफ से हो, अगर मैयत की तरफ से कुर्बानी की तो उसके गोश्त का भी यही हुक्म है कि उसको 3 हिस्सा करे। अलबत्ता अगर मैयत ने कहा, वसीयत की, मैयत ने मरने से पहले अगर मैयत ने कहा था कि मेरी तरफ से कुर्बानी कर देना, तो उस सूरत में कुल गोश्त सदका कर दे, पूरा का पूरा सदका कर। मरने वाला मरते मरते क्या कहा, मेरे नाम से कुर्बानी करना, तो ऐसी सूरत में वो गोश्त पूरा सदका कर देना है। कुर्बानी अगर मैयत की है तो उसका गोश्त ना खुद खा सकता है ना गनी को खिला सकता है, बल्कि उसको सदका कर देना वाजिब है। कुर्बानी करने वाला बकरा ईद के दिन सबसे पहले कुर्बानी का गोश्त खाए, यह मुस्तहब है। कुर्बानी का गोश्त काफिर को ना दे कि यहाँ के कुफ्फार हरबी हैं। चमड़ा, झोल, रस्सी, हार सब सदका कर दे। चमड़े को खुद अपने काम में भी ला सकता है, मसलन डोल, जानमाज, बिछौना वगैरह बना सकता है, लेकिन बेचकर कीमत अपने काम में लाना जायज नहीं। अगर बेच दिया तो उस कीमत को सदका कर देना वाजिब है। आजकल अक्सर लोग खाल दीनी मदरसा में दिया करते हैं, ये जायज है। अगर मदरसे में देने की नीयत से खाल बेचकर कीमत मदरसा में दे दें तो ये भी जायज है। कुर्बानी का गोश्त या चमड़ा कसाब या ज़बह करने वाले को मजदूरी में नहीं दे सकता। हाँ, अगर दोस्तों की तरह हदियातन मदद के तौर पर हदियातन हिस्सा दिया तो दे सकता है, जब उसे उजरत में ना शुमार करे। बात जगह कुर्बानी का चमड़ा मस्जिद के इमाम को देते हैं, अगर तनख्वाह में ना दिया जाए बल्कि बतौर मदद के तौर पर दें तो हर्ज नहीं। कुर्बानी का जानवर देखिए, कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए। ऊंट, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, नर, मादा, खसीर, गैर खसीर सबकी कुर्बानी हो सकती है। वहशी जानवर जैसे हिरन, नीलगाय, बारहसिंगा वगैरह की कुर्बानी नहीं हो सकती। दुम्बा,
भेड़ ही में दाखिल है। ऊंट 5 साल, अब बोल रहे उम्र कितनी होनी चाहिए जानवरों की, ऊंट 5 साल, गाय भैंस 2 साल, भेड़ बकरी 1 साल की हो या ज्यादा की, उससे कम की नाजायज है। हाँ, अगर दुम्बा या भेड़ का 6 माह बच्चा इतना बड़ा हो कि दूर से देखने में साल भर का मालूम होता हो तो उसकी कुर्बानी जायज है। कुर्बानी का जानवर मोटा, ताजा और अच्छा होना चाहिए, ऐबी ना होना चाहिए। अगर थोड़ा सा ऐब हो तो कुर्बानी हो जाएगी मगर मकरूह होगी, और अगर ज्यादा ऐब है तो होगी ही नहीं। मुंडा जिसके पैदाइशी सींग ना हो जायज है, अलबत्ता अगर सींग थे और टूट गए और मैन गूदा तक टूट गए तो जायज नहीं, इससे कम टूटा है तो जायज है। अंधा, लंगड़ा, काना, बेहद दुबला, कान कटा, दुम कटा, बेदांत का, थन कटा, बेदांत का कहते हैं, और उसके अलावा थन कटा, थन सूखा, नाक कटा, पैदाइशी बेकान का, बीमार, खुनसा जिसके दोनों निशानियां हो, जल्लाला जो सिर्फ गलीज खाता हो, इन सब की कुर्बानी जायज नहीं। बीमारी अगर खफीफ है यानी थोड़ी है और लंगड़ापन हल्का है कि चल फिर लेता है, कुर्बान गाह तक जा सकता है, या काना या नाक, दुम तिहाई से ज्यादा नहीं कटे तो जायज है। कुर्बानी करते वक्त जानवर उछला कूदा और उससे ऐबी हो गया तो हद नहीं। कुर्बानी की और पेट में जिंदा बच्चा है तो उसे भी ज़बह कर दे और काम में ला सकता है, और मरा हुआ हो तो उसे फेंक दे। खरीदने के बाद कुर्बानी से पहले जानवर ने बच्चा दे दिया तो उसे भी ज़बह कर डाले, और अगर बेच दिया तो उसकी कीमत को सदका कर दे, और अगर अय्याम कुर्बानी में ज़बह ना किया तो जिंदा सदका कर दे। फायदा, हमारे आका व मौला हजरत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करम अमीन को तो देखो कि खुद इस उम्मत मरहुमा की तरफ से कुर्बानी की, और इस मौका पर भी उम्मत का ख्याल फरमाया। लिहाजा जिस मुसलमान से हो सके वो हुजूर के नाम की कुर्बानी करे तो कैसी खुश नसीबी है। अल्लाह तबारक व तआला उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें सुन्नत इब्राहीम